کہ خداوند کی سلامتی آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین آمین. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ اس کا 45واں باب اور اس کی 18ویں آیت. مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 45واں باب اور اس کی 18ویں آیت. چیپٹر 45 ورس 18 اردو بائبل میں 698 پیج کے اوپر آپ کو ملے گا. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے. اسی نے زمین بنائی اور تیار کی. اسی نے اسے قائم کیا. اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا. وہ جو فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو. آمین آمین. خداوند کے زندہ کلام میں سے آپ نے 3 حوالہ جات کو سنا اور آج کا جو مضمون انتخاب کیا گیا اتھارٹی اپون ارتھ زمین پر اختیار سے متعلق ہم بات چیت کریں گے. اور اس کے لیے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی دوسری آیت اور 26ویں آیت سے 28ویں آیت تک تلاوت کیا گیا. اس کے بعد یسایہ نبی کے صحیفہ کے 14ویں باب میں سے اور حزقیل اس کے 28ویں باب میں سے آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. بہنوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ عبادت کو چلایا. والا جات کو پڑھا گیا. بہن روز میری نے بڑی خوبصورتی سے بات کو چلایا. خدا آپ کو برکت دے. اور میری دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں خواتین کو ہم اور زیادہ ایکٹیولی چرچ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دیکھیں. آمین آمین. یاد رکھیے کہ جب ہم آج اس مضمون پہ غور کرتے ہیں تو 9 نکات ہیں جن میں سے گزریں گے اور اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلا نکتہ ہے خلق کیا جانا. اور اس کے لیے یاد رکھیں کہ زمین کو خدا نے خلق کیا, خدا نے پیدا کیا. اور خدا کوئی بھی چیز ایسی نہیں بناتا جس میں نقص ہو, جس میں جھول ہو یا جو مکمل نہ ہو. نامکمل چیزیں خدا پیدا نہیں کرتا ہے. اور پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. کتاب مقدس کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ خدا. کتاب مقدس یہ الہام جو آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ خدا سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور کتاب مقدس خدا کو پروف کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے کہ اس کو ثابت کرے وہ کیسے ہے, وہ کیسے ہو گیا, وہ کہاں سے آیا. کیونکہ یہ ہماری عقل, ہماری سمجھ, ہماری سوچ, ہماری استعداد, ہماری اوقات, ہماری حیثیت سے بالا تر بات ہے. اسی لیے خدا کو پروف کرنے کی بات نہیں کی گئی بلکہ خدا سے کتاب مقدس کا آغاز کیا گیا اور بتایا گیا کہ خدا نے ابتدا کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور دوسرا نکتہ, کیوں پیدا کیا؟ اس لیے تاکہ زمین کے اوپر آبادی ہو سکے. زمین اس نے اس لیے پیدا کی
خدا رکھے. اور اس کا حوالہ ہم نے ابھی یسایہ نبی کے صحیفہ کے 45ویں باب کی 18ویں آیت میں ہم نے پڑھا. اور تیسرا نقطہ، پہلا نقطہ کہ زمین کو خلق کیا گیا، زمین کو کیوں خلق کیا گیا. اور تیسرا نقطہ کلام میں لکھا ہے پیدائش کی پہلے باب کی 2 آیت میں کہ زمین ویران اور سنسان تھی، ویران اور سنسان زمین. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز پیدا نہیں کرتا جو ویران ہو، جو سنسان ہو، جس میں گہراؤ ہو، جس میں اندھیرا ہو، جس میں نقص پایا جائے. یاد رکھیے کہ پیدائش کی پہلی آیت اور پیدائش کی 2 آیت کے اندر ہم نہیں جانتے، خدا نے اس بھید کو ہم سے مخفی رکھا ہے، چھپایا ہے، ہمیں بتایا نہیں ہے. لیکن پہلی اور 2 آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک توقف ہے، ایک وقفہ ہے، ایک ٹھہراؤ ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ کتنی دیر کا وقفہ ہے، کتنے ایئرز کا، کتنے ملین، ٹریلین، بلین ایئرز کا اس میں وقفہ ہے. ہم اس سے واقف نہیں ہیں. لیکن پہلی آیت اور 2 آیت کے درمیان کوئی بڑا حادثہ گزرا ہے. خدا نے جب پیدا کیا زمین اور آسمان کو تو وہ کوئی چیز بدصورت پیدا نہیں کرتا، اس نے اس کو مکمل پیدا کیا. لیکن 2 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ زمین جو ہے ویران اور سنسان تھی. لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ اوریجنلی پڑھیں تو تھی کی جگہ جو موضوع ترجمہ ہے وہ ہے زمین ویران اور سنسان ہو گئے. اگر آپ کنگ جیمز ورژن کو پڑھیں، کنگ جیمز ورژن کو پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ لگے گا، وہ یوں بیان کرتا ہے and the earth became formless and void. زمین ویران اور سنسان ہو گئی. پہلی اور 2 آیت کے دوران سامویئر لوسیفر فرشتے کا حادثہ ہوا ہے. کائنات کا پہلا گناہ کس نے کیا؟ لوسیفر فرشتہ. یہ کائنات کا پہلا گناہ تھا جسے کیا گیا. آسمان کے اوپر 3 مقرب فرشتے تھے، لوسیفر، میکائیل، جبرائیل. یہ تینوں فرشتے جو تھے ان کے پاس جو ہے یہ عام رائے ہے کہ 1/3 فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ ان کے کاموں کے لیے تھے. لوسیفر فرشتے کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ خدا کی پرستش کرے، وہ ورشپنگ اینجل تھا. جو جبرائیل فرشتہ تھا اس کی ڈیوٹی یہ تھی خدا کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائے. وہ میسنجر تھا، وہ میسج دینے والا فرشتہ تھا. اس لیے جب بھی آپ میسج لے کے کسی فرشتے کو دیکھتے ہیں، کتاب مقدس میں آیا ہے، چاہے وہ دانیل ہو یا مکاشفہ میں خداوند یوحنا کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے یا مریم کے پاس بھیجتا ہے، ہمیشہ جبرائیل فرشتے کو دیکھیں گے کیونکہ وہ پیغام رسا فرشتہ تھا. اور تیسرا مقرب فرشتہ میکائیل، وہ واریر اینجل تھا. اس کا کام تھا وار کرنا، جنگ کرنا. اور جہاں بھی آپ وار کو دیکھیں گے خدا کے فرشتوں کی طرف سے میکائیل انہیں جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. لیکن یہ فرشتہ جو لوسیفر تھا، اس کی ابتدا جب بھی ہوئی تو خدا نے اسے پرستش کی ذمہ داری دی کہ اس نے خدا کی پرستش کا کام انجام دینا. اور یہ خدا کی پرستش کرنے لگا. اور حزقیل کے 28ویں باب کو جب آپ نے پڑھا ہے تو وہاں پہ اس فرشتے کی ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ یہ فرشتہ کیسا تھا، یہ کیسا نظر آتا تھا. جب آپ اس میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہ حسن میں لاجواب کمال تھا اور دانی سے معمور تھا، خاتم الکمال تھا. کمال اس پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. جب اس پہ آپ نگاہ کرتے تھے اس کی خوبصورتی کے لیے، اس
دیا گیا کہ صبح کا روشن ستارہ. یہ جو دونوں حوالہ جات ہیں یہ ایک ایک بادشاہ کے لیے بھی مختص ہے، لیکن اسے آپ بائبل میں کہتے ہیں لا آف ڈبل ریفرنس. بات ان کی گئی ہے لیکن اس میں بھید اور مکاشفہ جو ہے وہ ریفرنس کیا گیا ہے لوسیفر فرشتے کے لیے. اور جب آپ یسایہ میں پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے، کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو نقص ہے وہ پیدا کیسے ہو گیا. اس کے اندر بتاتا ہے کہ وہ ممسوک روبی تھا اور وہ سایہ افغان تھا. مطلب یہ ہے وہ خدا کے تخت کے اوپر اڑتا تھا، سایہ کرتا تھا، اور اس طرح اس کے سامنے جتنے ایجنٹ ہوتے تھے وہ ان کو پرستش میں بھی لیڈ کرتا تھا اور خدا کے تخت کے اوپر سایہ کرتا تھا. مقصد یہ نہیں کہ خدا کو سایہ کی ضرورت تھی، یہ جو ہے اس طرح کا سایہ کیا جانا یہ کنگلی اور الہی یا بادشاہت کے نشان کو پیش کرتا ہے. آپ پرانے بادشاہوں کو بھی اگر دیکھیں، وہ جب اپنے رتھوں کو لے کے نکلتے تھے ایک چھوٹی سی کنوپی اوپر لگا لیتے تھے. وہ نہ بارش سے بچاتی تھی نہ دھوپ سے، لیکن یہ ایک نشان تھا. اور یہ جو فرشتہ تھا یہ سایہ افغان تھا، اور جب یہ ایک دن تخت کے اوپر اڑ رہا تھا تو کلام میں لکھا ہے تیرے دل میں غرور سما گیا، گھمنڈ سما گیا. تو نے کہا کہ میں تو پہلے ہی خدا کے تخت کے اوپر اڑ رہا ہوں. تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اوپر لگاؤں گا اور میں خدا تعالیٰ کی مانند بن جاؤں گا اور میں خدا سے بڑا ہو جاؤں گا. اور گویا یہ خیال اس کے دل میں آ گیا کہ خدا بھی میرے اختیار اور میرے حکم کے نیچے آ جائے گا. اتنا بڑا گناہ کوئی مخلوق کر لے، کسی مخلوق کے ذہن میں یہ آ جائے کہ خدا میرے متحد ہو جائے گا، خدا میرے نیچے آ جائے گا، میں اتنا بڑا ہو جاؤں گا، میں اس طور سے اپنے تخت کو لگاؤں گا کہ خدا کے تخت سے بھی اوپر میرا تخت ہوگا. یہ خیال اس لیے اس کے اندر آ گیا کیونکہ وہ آلریڈی خدا کے اوپر اڑتا اور سایہ کرتا تھا. گھمنڈ سما گیا، غرور سما گیا. لیکن یاد رکھیے خدا نے اسے کچھ نہیں کہا. جس وقت، جس لمحے، جس گھڑی یہ خیال اسے آیا اسی وقت خدا جانتا تھا. وہ غیب کا جاننے والا ہے، عالم کل ہے، ہر ایک چیز کا علم اس کو ہوتا ہے. اس نے اس کو کچھ نہیں کہا، اسے وقت دیا گیا، تحمل کر کے ٹھہر گیا خداوند کہ یہ توبہ کر لے، اس خیال کو چھوڑ دے، پچھتاوا ہو اس کی زندگی کے اندر. لیکن اس عرصے کے اندر اس نے 1/3 فرشتے جو اس کے متحد تھے ان کو گمراہ کر دیا اور یہ سوچ کسی طرح سے ان کے اندر ٹرانسفر کر دی. اور جب اس نے ایسا کیا تو یہ سارا نظام روک دیا گیا. خدا نے لوسیفر کو لیا، اس کے فرشتوں کو لیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کو اور اس کے فرشتوں کو آسمان سے گندگی کے ڈھیر کی طرح نیچے پھینک دیا گیا. اور جب وہ نیچے آ گیا تو نیچے آ کے اس نے زمین کی طرف رخ کیا. اور جب وہ زمین کی طرف آیا تو زمین جو ہے خدا نے بنائی ہوئی تھی. ابتدا میں اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا، بہت ہی خوبصورت پیدا کیا تھا، کامل پیدا کیا تھا، کوئی نقص نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی. اور جب اس نے دیکھا تو اسے زمین کی خوبصورتی دیکھ کے آسمان یاد آنے لگا، کیونکہ خدا کے حضور میں بھی ہر ایک چیز کامل ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کسی
आसान करना शुरू कर दिया। खुदा जो नूरों का बाप है, उसने जब नूर को देखा, उसने तारीकी को पैदा कर दिया। उसने कहा मैं नूर में नहीं रह सकता, क्योंकि नूर मुझे खुदा की याद दिलाता है, खुदा के जलाल की याद आती है। क्योंकि आसमान पे कोई तारीकी नहीं है, आसमान पे कभी रात नहीं होती है, वहां खुदा का जलाल और उसकी रोशनी फैली रहती है। और उस तारीकी में उसने रहना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं इस तारीकी के अंदर रहूंगा, मैं इस तारीकी के अंदर बसेरा करूंगा। इब्लीस जहां भी होगा वहां तारीकी होगी, ऐसी तारीकी जिसमें लोग भूल जाते हैं, चूक जाते हैं, जिसमें लोग जो है गिर जाते हैं, जिसमें लोगों को होश नहीं रहती, जिसमें जिंदगियां भूल जाती हैं। उनके बनाने का मतलब और मकसद क्या है? उनके बनाने का मतलब और मकसद ये नहीं है कि अगर मेरे लिए किसी ने छोटी सी बात कर दी है तो मैं उसके खिलाफ उठ खड़ा हूं। मुझे बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं मुकाबलाबाजी करता फिरूं। मुझे बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं हर तरह की बदगोई और बुरी बातें और गीबत और लड़ाइयां और झगड़े और मकर और हर तरह का बुरा करता फिरूं। नहीं, बल्कि इसलिए खुदा ने हमें बनाया ताकि मैं खुदा की हम्द करूं और मेरे वसीले से खुदा की हम्द हो। इब्लीस ने सुकूनत इख्तियार कर ली जमीन के ऊपर, और उसके बाद जमीन की बहाली का काम शुरू हुआ। चौथा नुक्ता, खुदा की तरफ से जमीन की बहाली। इब्लीस जिस चीज को भी डिस्ट्रॉय करता है, इब्लीस जिस चीज को भी डिसऑर्डर करता है, डिफॉर्म करता है, डिटैच करता है, खराब करता है, खुदा उसे बहाल करने का प्रोग्राम बनाता है। मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं, अगर हमारी जिंदगियों के अंदर कहीं पे डिसऑर्डर है, कहीं पे कुछ ऐसा है, बेतरतीबी है, कहीं पे कोई ऐसी चीज है जो अपनी जगह के ऊपर नहीं है, इब्लीस ने उसे डिस्टर्ब किया है, तो याद रखिए जब उसने डिस्टर्ब किया था, खुदा ने उसी वक्त उसे बहाल करने का प्लान बना लिया था। अगर आप उसके हाथ में आ जाए, अगर आप अपने आप को पूरे तौर पे उसके हवाले कर दें। इब्लीस ने जमीन को वीरान और सुनसान किया, खुदा ने जमीन की बहाली का प्रोग्राम बना लिया। खुदा ने जमीन और आसमान को कामिल बनाया था, इब्लीस ने वीरान और सुनसान कर दिया, खुदा ने फिर दोबारा उसे बहाल करने का प्रोग्राम बनाया। और तीसरी आयत में हम देखते हैं खुदा जमीन पे उतर आया, और जब खुदा जमीन पे उतरा तो खुदा ने पहला लफ्ज अदा किया, और पहला ही कलमा, पहला ही लफ्ज जो खुदा के मुंह से निकला, यहां पे लिखा है खुदा ने कहा, क्या कहा पहला लफ्ज? रोशनी हो जा। खुदा ने रोशनी को वापस तलब किया। जहां पे खुदा आएगा वहां पे रोशनी आ जाएगी, नूर आ जाएगा, हमें नजर आना शुरू हो जाएगा हम कितने कमजोर हैं, हमें कहां कहां दुरुस्ती की जरूरत है, कहां कहां गुनाह है, कमी है, बुराई है, बदी है, और हमें जो है हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमें साफ नजर आने लगेगा। उसके बाद बहाली का काम होता है। पहले रोशनी आती है, पहले खुदा आता है। रोशनी नहीं आ सकती जब तक खुदा ना आए, और जब खुदा आए वहां पे रोशनी जरूर आती है, तारीकी ठहर नहीं सकती है। आमीन, आमीन। खुदा आ गया और उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हर तरफ नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी, जलाल ही जलाल जमीन पे फैल गया। और इब्लीस जो वहां पे धक्का बैठा हुआ था, वो इस आवाज से वाकिफ था, और इस आवाज को सुनते ही उसका कहर और गजब भड़क उठा, और वो इंतहाई डर गया, और वो जानता था वो खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता, वो जानता था वो खुदा को हरा नहीं सकता। आज भी वो जानता है वो खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता, वो खुदा को नहीं हरा सकता। अगर कोई खुदा को हरा सकता है तो वो उसके अपने लोग हैं जो उसे फेल कर सकते हैं, जो उसे नाकाम कर सकते हैं, वरना खुदा कभी नहीं हारता। खुदा ने आवाज जब दी,
इब्लीस को समझ आ गई खुदा आ गया है, और वो बड़ा पेचोताप खाने लगा। और देखते ही देखते खुदा ने 5 दिनों के अंदर जमीन को बहाल कर दिया, उसकी इब्तदाई खूबसूरती समेत उसको और भी ब्यूटीफाई कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया, परफेक्शन उसके अंदर आ गई, हर एक चीज इंतहाई खूबसूरत नजर आने लगी। और इब्लीस जो है वो गम और गुस्सा खाता रहा। और फिर आप लिखेंगे 5वां पॉइंट, शैतान का रद्द अमल। जब खुदा ने ऐसा किया तो इब्लीस जानता था कि मैं खुदा को रोक नहीं सकता, लेकिन वो 5 दिन कोशिश करता रहा तख्लीक के इस काम को, रिन्यूअल के इस काम को रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं सका, उसका बस नहीं चला, वो उसको रोक नहीं सकता था। याद रखना है आपने और मैंने कि जब भी खुदा हमारी जिंदगी के अंदर आता है, खुदा हमारी जिंदगी के अंदर रिन्यूअल का काम करता है, बहाली का काम करता है, इब्लीस चाहे भी तो उसे खत्म नहीं कर सकता जब तक खुदा मौजूद है। लेकिन अगर किसी वजह से खुदा नाराज हो जाए, खुदा का रूह रंजीदा हो जाए, खुदा का रूह मुझसे और आपसे जुदा हो जाए, तो खुदा में लिखा है कि फिर बदरूहें जो हैं उस घर को साफ और झड़ा हुआ पाती और अपने से बुरी 7 रूहें लेके आती हैं, और उस खानदान का, उस शख्स का, उस कलीसिया का हाल पहले से बदतर हो जाता है। जब तक खुदा मौजूद है, खुदा काम करता रहता है, खुदा नया बनाता रहता है, खुदा खूबसूरत बनाता रहता है, नई बरकत आती रहती है, नई सोचें आती रहती हैं, नई कुदरत आती रहती है। इब्लीस रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर खुदा चला जाए तो इब्लीस जो है वीरानियों और सुनसानियों और अंधेरों को पैदा कर देता है, और उसकी सारी काविश और उसकी सारी कोशिश के बावजूद ये काम जो है तख्लीक का ये जारी रहा और ये मुकम्मल हो गया। और इस सारे वक्त में इब्लीस पता नहीं कैसे कैसे रिएक्ट करता होगा। शायद वो अपनी बदरूहों को कहता हो, खुदा हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देता, खुदा के पास सारी कायनात है काम करने के लिए, उसके लिए है ये सब कुछ, ये एक जमीन का जो सियारा है, प्लेनेट है, मैंने इसका इंतखाब किया है, खुदा इसी पे क्यों आ गया है? जी हाँ, क्योंकि उसने खुदा से जान छीनी है। जो चीजें खुदा बनाता है वो उनकी जिम्मेदारी लेता है। खुदा ने आपको बनाया है, खुदा ने आपकी जिम्मेदारी ली है। जब तक हम खुद बर्बाद ना होना चाहे, कोई हमें बर्बाद नहीं कर सकता, इब्लीस हमें छू नहीं सकता, इब्लीस भी हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा आपके साथ है, खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा ने आपको बनाया है, और खुदा आपकी हिफाजत करने के लिए दिन और रात जागता रहता है। इस्राएल का निगहबान ना ऊँघता है ना सोता है। हालेलुया। वो दिन और रात जागता है, हम सो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम नातवा हो जाते हैं, लेकिन खुदा जागता रहता है। उसका बेटा खुदा यीशु मसीह हमारे लिए शफाअत करता रहता है। इसने गुनाह किया है, इसे माफ कर दे, इसने माफी मांग ली है, मेरे लहू के सबब से इसे धो डाल, वो धो देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंसान का इख्तियार। 5 दिन गुजर गए, जमीन पे रोशनी थी, दरख्त थे, समुंदर थे, नहरें थी, हर तरह के आबी जानवर, दरिंदे, परिंदे, सब कुछ फिर रहा था। और 6वें दिन अब इब्लीस इंतजार करने लगा कि आज खुदा क्या करेगा। कौन सा दिन था वो जी? या डे क्या था वो? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, शाबाश, जुमे का दिन, छठा दिन, जुमे का दिन। फ्राइडे मीटिंग पे आया करें, आपके बनाने का दिन है वो, आपकी तख्लीक का दिन है वो, हम इंजॉय करते हैं खुदा के हुजूर में। और इब्लीस देखने लगा कि 6वें दिन खुदा क्या करता है, और उसने गौर करना शुरू किया और उसने देखा कि खुदा
होगा, शायद वो हंस रहा होगा, शायद वो कह रहा होगा पता नहीं ये क्या दीवानगी है, खुदा ने अपने पुतले बनाने शुरू कर दिए हैं। और ये पुतला जो है वो देख सकता था, मुकर्रम फरिश्ता रहा था, ये पुतला खुदा की मानी नजर आता था। और उसने थोड़ी देर के बाद देखा खुदा ने उस पुतले के अंदर दम ठोक दिया, और कलाम में क्या लिखा, वो क्या हो गया, जीती जान। ये दो जिंदगियां हैं। कितनी जिंदगियां हैं? दो। इंसान किन तीन चीजों से मिलकर बना है? बदन, जान और रूह। रूह, बदन और जान, तीन चीजों से मिलकर बना है। इंसान रूह है, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखें। इंसान रूह है जो जान रखता और बदन में रहता है। इंसान रूह है जो जान रखता और बदन में रहता है। आपकी स्पिरिट असल आप है, बाकी आप कुछ नहीं है। बाकी आप दिखाने के लिए, थोड़ी देर सर्वाइवल के लिए है, जमीन पर रखे गए हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, फानी है, फना होने वाला है। खुदा ने उसके अंदर जिंदगी फूंकी, और जब उसके अंदर जिंदगी फूंकी तो वो जीती जान हो गया। जीती का मतलब है उसके अंदर स्पिरिट लाइफ आ गई, और जान का मतलब है उसके अंदर सोल लाइफ आ गई। वो जीती जान हो गया वो पुतला, और वो खुदा की मानिंद नजर आने लगा। और इब्लीस जो है वो उसको देख के खौफजदा हो गया। वो तो जिंदा हो गया था, वो तो खुदा की मानिंद नजर आने लगा था। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसके बाद उसको आदम कहा और उसको इख्तियार दे दिया, उसको अपना इख्तियार दिया खुदा ने। और याद रखिए कि खुदा की मानद होना ही इख्तियार की बात है। आमीन। खुदा की मानद आप बनाए गए हैं, यही आपका इख्तियार है। बादशाह जो पुराने होते थे, अगर बादशाह किसी को अपनी अंगूठी उतार के दे देता था तो वो कौन सा इख्तियार पा जाता था? बादशाह का इख्तियार उसके पास आ जाता था। जिस किसी दस्तावेज चीज पे वो उस अंगूठी से मोहर कर दे, वो ऐसे ही समझी जाती थी जैसे ये बादशाह का हुक्म और फरमान होता है। और जिसको बादशाह की तरह बना दिया जाए, जिसके बाल, आंखें, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना हो, उसका इख्तियार कितना बड़ा होगा। खुदा की मानद होना ही इख्तियार की बात है, और खुदा ने उसको इख्तियार दे दिया। और बाद में ये इख्तियार इब्लीस की बात मान के आदम और हवा ने खो दिया। और जब यीशु वापस आया, इब्लीस ने उस इख्तियार को वापस लिया और उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और ये इख्तियार उसने कलीसिया को दिया, और उसने कहा कि अब तुम सांपों को और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुम्हें हरगिज़ किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। तुम महफूज रहोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम ठीक रहोगे क्योंकि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। और तुम्हें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरे हो। तुम अबदी हो गए हो क्योंकि मैं अबदी हूं। ओह हालेलुया। और इस तौर से खुदा का इख्तियार उसकी जिंदगी के अंदर मूव करने लगा और काम करने लगा। और इस वजह से इब्लीस जो है वो इंतहाई गजब से और गुस्से से भरता चला गया। उसने देखा कि जो कुछ वो बनना चाहता था अपनी ताकत से, खुदा ने आदम को लिया और खुदा ने अपनी मोहब्बत से उसे वो बना दिया जो इब्लीस अपनी ताकत से बनना चाहता था। इब्लीस जो है वो किसकी मानद बनना चाहता था? खुदा की मानद। ये साहब हमने पढ़ा, उसने कहा मैं खुदा की मानद हो जाऊंगा, और वो हार गया क्योंकि उसने अपनी ताकत और गलत चीज से बनने की कोशिश की। लेकिन खुदा ने मुझे और आपको लिया, आदम और हवा को लिया, आप में से हर एक को लिया और हमें अपनी मानद बना दिया। इब्लीस जो बनना चाहता था वो आपकी तरह बनना चाहता था, वो आपकी तरह नजर आना चाहता था, वो आपकी तरह जो है वो इख्तियार में रहना चाहता था। लेकिन खुदा ने उसे रिजेक्ट कर दिया और आपको सिलेक्ट कर दिया। खुदा ने उसे फेंक दिया और आपको लगा दिया अपने घर के अंदर, ताकि आप ना सिर्फ खुदा की मानद नजर आए बल्कि इब्लीस की वो जगह जब वो वर्शिपिंग एंजल था, आज आसमान पे मुकर्रम फरिश्ता लूसीफर की जगह खाली है, वहां पे वर्शिपिंग एंजल नहीं है। उस
उसकी जगह खुदा ने आदम को बनाया, हवा को बनाया। और इसलिए कलाम में लिखा है, मैंने इसलिए आदम को बनाया ताकि वो मेरी हम्द करे, ताकि वो लूसीफर की जगह को फिल करे। वो इसलिए नहीं बनाया हमको कि हम दिन रात गाने गाते फिरे। हम इसलिए नहीं बनाए गए कि हम तरह तरह की ट्यूने गाते फिरे, ताकि हम खुदा की प्रस्तुति करें, खुदा की सिताइश हमारे मुंह से निकले, हमारे लबों से खुदा की हमद निकलती रहे। इसलिए खुदा ने आपको और मुझे बनाया है। ये हल्की बात नहीं है। जब कोई समझ जाता है, हो उसके मुंह से हमद के गीत और चश्मे फूट निकलते हैं। और ये बरकत और ये कुदरत खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए रखी है, ताकि हम उठते बैठते चलते फिरते वक्त उसका जिक्र किया करें। इस बात का जिक्र ना किया करें हमने फलां जगह कब जाना है, फलां प्रोग्राम कब देखना है, ऐसे क्या करना है। नहीं, खुदा की हमद के गीत, खुदा की सिताइश, खुदा के प्रोग्राम। दुआ कब शुरू होगी, दुआ पे जाना है। मैं जा नहीं सका, मैं जरूर जाऊंगा, गिरजा नहीं जा सका, मुझे जाना चाहिए, आप भी आइए। ये मकसद है आपका और मुझे बनाने का खुदा के नजदीक। वो चीज जो इब्लीस हासिल करना चाहता था, खुदा ने वो इख्तियार, वो बरकत मुझे और आपको सौंप दी है, ताकि हम इस इख्तियार में जिए और खुदा का शुक्रिया अदा करें। सातवीं बात, शैतान इंसान से नफरत करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि वो सब कुछ जो मैं बनना चाहता था उसी तरह का सब कुछ खुदा ने इंसान को बना दिया है। मैं जो होना चाहता था वो इंसान हो गया है। इब्लीस जो खुदा के ताबे नहीं रहना चाहता था, इब्लीस जिसने इनकार कर दिया था खुदा के ताबे रहने को, खुदा ने इब्लीस को बराह रास्त अपने ताबे नहीं किया, बल्कि खुदा ने अपनी मदद एक पुतला बनाया। उस पुतले का नाम उसने आदम रखा। उसका नाम उसने आप में से हर एक को दे के रखा। और उस पुतले को आदम को इख्तियार दिया कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि जमीन को मामूर करो और महकूम करो, हाकिम हो जाओ, इसके बादशाह हो जाओ इसके, और जो कुछ इसके अंदर चलता फिरता है उस सब पे क्या रखो, इख्तियार रखो। और इब्लीस भी जो जमीन के अंधेरों में छुपा रहता था वो भी उसके इख्तियार के नीचे आ गया। वो जो खुदा के इख्तियार के नीचे नहीं रहना चाहता था, खुदा ने आपको और मुझे बनाया और हमारे इख्तियार में इब्लीस को कर दिया। इसलिए कलाम में लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मुझे और आपको ये जानने और ये पहचानने की जरूरत है। आठवीं बात, हमारा इख्तियार। याद रखिए, खुदा ने आपको बहुत बड़ा इख्तियार दिया। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है अदा करने के लिए, मेरे पास सोच नहीं है आपको बताने के लिए कि कितना बड़ा इख्तियार खुदा ने आपको दिया है। आसमानों और जमीनों और कुल कायनात की सारी कुदरत और सारी बरकत का इख्तियार उसने आपको दे दिया है। और याद रखें कि इब्लीस हमारे इख्तियार से वाकिफ है। इब्लीस जानता है हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या इख्तियार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने इख्तियार को नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता हम कौन हैं। इसलिए मुझे और आपको हमें इस इख्तियार को जानना और इस इख्तियार को पहचानना और इसमें चलना है। आखिरी नुक्ता, हमारा मुकाम। नौवां नुक्ता आखिरी, हमारा मुकाम। यहां पे लिखा है इब्लीस क्या बनना चाहता था। यसाया नबी के सहीफा के 14वें बाब में आप पढ़ते हैं 12वीं आयत से, और यहाँ पे ये हवाला आपने पढ़ा है सारा। और यहाँ पे कहता है, तू तो अपने दिल में क्या कहता था, मैं आसमान पे चढ़ जाऊंगा। वो ये सोच रहा था कि मैं खुदा से ऊपर हो जाऊंगा, मैं आसमान पे चढ़ जाऊंगा
शुक्रिया अदा करते रहें। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने सिरों को झुकाइए। खुदावंद जो जोरावर खुदा है, एक बड़ा मुकाम, एक बड़ी जगह खुदा ने हमें दी है, प्रस्तिश की जगह, आसमानी मुकामों में प्रस्तिश की जगह। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। चंद में खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए। हम जो कुछ भी नहीं थे, हम जो मट्टी की मानी थे, खुदा ने हमें मट्टी से उठा के अपने साथ तख्त पे बैठा लिया है। वो जगह जहां को, जिस जगह को लूसीफर ने खाली किया है, उस जगह उसने जमीन की मट्टी को वो जगह दी है, यानी आपको और मुझे। हम जो कुछ भी नहीं थे, ना कोई उम्मत थे, ना कोई कौम थे, ना कोई शख्सियत थे, खुदा ने हमें शख्सियत बख्शी और ऐसी बख्शी कि हम उसकी तरह, उसकी मानिंद नजर आए। इसलिए वो ईमानदार, वो लोग जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, इब्लीस उनको देख के दहशत खा जाता है, खौफ खा जाता है, क्योंकि उन्हें देख के उसे खुदा नजर आने लगता है। और इसलिए आप खुदा के नाम और कलाम और कुदरत के लिए इस्तेमाल होने के लिए बुलाए गए हैं। अपने मुकाम को पहचानिए और उसके मुताबिक अमल कीजिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावंद जो जोरावर है, वो यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है। अगर आपकी जिंदगी में कहीं कोई ऐसी कमी है जिसे आपने महसूस किया है, खुदा के रूह कुदस ने हाथ रखा है, तो अपने दिल पे अपने हाथ को रखिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने दिल पे अपने हाथ को रखिए और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद आसमानी जलाली बाप, मैं अपने इन सारे बहनों को और भाइयों और अजीजों को और अपने आप को आए खुदा तेरे जख्मी हाथों में देता हूँ। मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम में मिन्नत करता हूँ कि इन जिंदगियों के अंदर वो कमी और वो कमजोरी जो तेरे कलाम के थोड़ा लगने के वसीला से नजर आई है, यीशु के नाम में जाती रहे। आए खुदा की जिंदगियों में नूर आ जाए, रोशनी आ जाए, ताकि अंधेरा खत्म हो, वीरानियां खत्म हो, सुनसानियां खत्म हो, गहराव खत्म हो जाए, और खुदा तेरा जलाल इनकी जिंदगी में नजर आए, तेरी बरकत इन्हें मिल जाए, तेरी प्रस्तिश की जुबानों से हो, ताकि खुदा ये अपने लिए, कलीसिया के लिए, घराने के लिए बरकत, कुव्वत और कुदरत के साथ इस्तेमाल हो। इस कलीसिया में एक नई बेदारी और एक नई बरकत के भाव खुल जाए। खुदा इन जिंदगियों को इस्तेमाल करें खुदा, एक दूसरे की बरकत के लिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के लिए, एक दूसरे के साथ बर्दाश्त के लिए, एक दूसरे के साथ नई चीजों में, रूहानी चीजों में आगे बढ़ने के लिए। तेरा शुक्र और तेरी स्तुति, तेरी हमद खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। मेरे